95% of all the NEET aspirants fail every year due to these 5 blunders. So, welcome to my channel. I'm Ashwarya, and today I will discuss 5 blunders that you guys are doing in your preparation and you even might not know. मीन्स आई वॉन्ट टू से कि हमारे डेली प्रिपरेशन में हम ऐसे कई मिस्टेक्स करते हैं जिनको हम कॉन्टीन्यूसली इग्नोर करते हैं और फिर यही इग्नोरेंस मेन पेपर वाले दिन जाके हमारे लिए गिल्ट बन जाता है. ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड आई कैन अंडरस्टैंड. सो प्लीज़ आप ये मिस्टेक्स ना ही करें तो बेहतर होगा. If you really want to select this year, then you really need to rectify these 5 mistakes. The number 1 mistake is studying without proper plan. I mean to say that कि हम सब पढ़ते हैं, we all students study hard, but 95% students fail. Means selection ratio is very low, and you might know the reason behind this. I mean to say NEET syllabus is huge, and if you guys will study randomly, then it will become impossible for you to cover the syllabus, and it will become really and nearly impossible to revise at the end. Means you must know that revision is very important. हमारे लिए revision सब कुछ है. Means for every aspirant in every field. So if you follow a proper plan, proper strategy, and of course सबसे important a proper road map कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और इसको रिवाइज कैसे करना है is very important. It doesn't matter how much you worked hard, but of course your strategy always matter. Number 2 mistake that we all guys do and even don't mind it, that is inconsistency and discipline. मैंने ये नोटिस किया कि हम लोग की इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है. मीन्स हम लोग सोचते हैं किसी दिन हम लोगों ने 12 आवर्स पढ़ लिए तो हमें अगले दिन पढ़ने की नहीं ज़रूरत है. वी फील फ्री, बट नो, आई वॉन्ट टू रियली सजेस्ट यू दैट always study. Every single day is very important to spend it in studies, because discipline और consistency ही वो चीज़ है जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएगी. And consistency is something like it should not be break, like if you study one day for 12 hours and another day you are wasting your time. No guys, this is very biggest blunder of your preparation. So always make sure कम पढ़ो, 8 ही घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो. 7 घंटे ही पढ़ो बट डेली पढ़ो. डजेंट मैटर कि आप 12 आवर्स पढ़ो, आप अपने ही स्टेमिना पे पढ़ो, बट उस रूटीन को ऑलवेज फॉलो करो. ओके. द नंबर 3rd, the mistake that we do, distraction. Distraction is something like that you do every single day and you don't know, even you not realize it. Means for me, as my personal suggestion, scrolling reels and short is a waste of time and is a waste of your hard work. Means if you are genuinely preparing for any exam, and of course competitive exams like NEET, you really need to keep yourself on track and keep yourself on focused. Means you cannot be distracted. डिस्ट्रैक्शन आपका फोकस बिगाड़ देती है और आपका टाइम वेस्ट कर देती है, जो कि वी स्टूडेंट्स कांट अफोर्ड. सो फॉर मी, इफ़ यू आर फीलिंग फ्री और if you have time from studies, then do something else that make you feel fresh, not bored. Means or not something that imbalance your focus. Means distraction is like if you are sitting free, make sure that you are not free for more than half an hour. And of course if you are scrolling reels or mobile, then always make sure that the time limit should not cross beyond 10 to 15 minutes. एंड ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी डेली रूटीन पे नज़र रखेंगे. मीन्स यू हैव टू कीप आई ऑन योर रूटीन. मीन्स अगर आपका पूरा अटेंशन आपके रूटीन और आपके स्टडी पे है तो आप अच्छे से पहचान पाओगे कि आपका पूरा टाइम कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है. तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा एट दी एंड. सो नंबर 2 मिस्टेक दैट वी आर डूइंग और मे बी नॉट इज़ गिविंग टेस्ट एंड मूविंग ऑन विदाउट एनालाइजिंग इट प्रॉपरली. मीन्स ये मेरा खुद का भी मिस्टेक हुआ करता था. मीन्स जैसे कि मैं टेस्ट देती थी 3 आवर्स एंड आई टुक एनालिसिस फॉर हाफ एन आवर ओनली. मीन्स मैं एनालिसिस सिर्फ हाफ एन आवर ही करती थी और मैं जस्ट मूव ऑन कर जाती थी. मीन्स इट वॉज सच अ ब्लंडर दैट इवन आई डोंट रियलाइज ऑन टाइम, बट मीन्स इट्स सच अ बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू can't afford in your preparation journey. Means if you are giving a test for 3 hours, it is very important for you to analyze the paper for further 3 hours, because you give paper to not praise someone, it's just because to build your capability, to build you as a something that you do not repeat in future. मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जो मिस्टेक्स करते हैं पेपर में,
जो आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स, ऐसे कुछ पॉइंट जो आप रिवाइज़ नहीं किए होते, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने कभी देखे ही नहीं, यही सब चीज़ें आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें ला सकती हैं अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक रिवीजन कॉपी बनाइए, इन सबको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज़ कीजिए टाइम पे, और कभी भी अपने पेपर में होने वाले मिस्टेक्स को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जो आप आज इग्नोर कर रहे हैं वो आगे चल के आपका वो सिली मिस्टेक बन के ही आएगा। तो उस सिली मिस्टेक ना बने, इसलिए आप कीप आई ऑन योर टेस्ट पेपर ऑल्सो, एंड एनालिसिस को उतना ही टाइम दो जितना आप पेपर सॉल्व करने में दे रहे हो। सो फॉर मी एनालाइजिंग पेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गिविंग पेपर। मीन्स अगर आप पेपर दो तो एनालाइज प्रॉपरली कर लो, नहीं तो इससे अच्छा आप दो ही मत पेपर। फॉर मी नंबर 5 मिस्टेक, एंड द मिस्टेक दैट आई एम गोइंग टू टेल इज़, ये एक ऐसा मिस्टेक है जो कभी हम लोग ध्यान भी नहीं देते और आगे चल के ये सिली मिस्टेक का रूप ले लेते। कभी आपने सोचा ये सिली मिस्टेक्स होते क्या है? ऑफ कोर्स ये वही डाउट्स हैं जो हम लोग टाइम पे नहीं क्लियर करते, फिर जाके 2 ऑप्शंस में ये कन्फ्यूजन करते हैं क्रिएट। तो कभी भी डाउट आए कोई भी क्वेश्चन पे, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी स्टेटमेंट पे, उसको एट वंस क्लियर करो, उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। और कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागना कि पहले मैं टॉपिक कवर करता जा रहा हूँ उसके बाद मैं अपने डाउट्स क्लियर करूँगा। नो, पहले डाउट क्लियर फिर टॉपिक कवरिंग। मीन्स you have to be very sincere in your preparation. I hope you understand that what I am trying to say, and make sure that this mistake should not be the part of your preparation so that you get selected next year. So all the very best for your future, and if you need any kind of help, do let me know in the comments. I will really feel glad to help you all. Okay, bye.